हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द previous session we have discussed universal law of gravitation. In today's session we are going to solve some example, and we are going to discuss one important thing, that is how the value of universal constant of gravitation is derived. Okay, that also we are going to discuss. So first example of the today, what is given? The three equal masses of m kilogram, A, B and C, okay, each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on mass 2m? Okay, आपको क्या mass 2m दिख रहा है? हाँ, placed at the centroid G of the triangle. ओके, अब ये जो 2m वाला मास है, इस पे तीनों ये जो मास है वो फोर्स लगाएंगे। कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे देखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए सेंट्रोइड से तीनों का डिस्टेंस सेम होगा। सो यू कैन से दिस ऑल थ्री फोर्सेस आर सेम, एफ एफ एंड एफ। ओके, देखो मैं ये यहाँ पर फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एफ, ये वाला और ये वाला। All these three are of the same magnitude, and this angle, बच्चों ये एंगल भी कितना होगा 120। देखो यहाँ पर हम इस रिजल्टेंट फोर्स को कैसे सॉल्व करें। ये तीनों के बीच में कितना एंगल होगा 120 डिग्री होगा। नाउ आई एम ड्राइंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, प्लीज सी हियर, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। अभी देखो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 30। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट पढ़ सकते हैं ऐसे। सो व्हाट इज दिस, हियर एफ cos 30, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं एफ sin 30, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस, यस दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। So this component is the f cos 30, and again this component is the f sin 30. Now this f cos 30 and f cos 30 are equal and opposite, that's why they get cancelled each other. Okay, तो अगर हम f sin 30 देखें, f sin 30 means f by 2, f sin 30 means f by 2, means upward force is the f and downward force is also f, therefore they got cancelled out. Therefore what you can say, no net force will act on mass placed at centroid. Okay, that we can say. Now what is the next question, what is the force if mass at the vertex A is doubled? Okay, यहाँ पर मास जो m है उसको क्या कर दिया गया बच्चों 2m। तो अब अच्छी तरीके से देखिए, ये 2m है, तो ये वाला फोर्स है वो डबल हो जाएगा, मतलब कि ये फोर्स कितना हो जाएगा 2f, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो व्हाट यू कैन से, हियर आई एम राइटिंग b, हियर दिस इज द 2f and this force is the f, so get cancelled out, and therefore resultant force f resultant is equals to f, and how much it will be, f is equals to g m1 m2 upon r square. Okay, g m1 m2 upon r square, and m1 and m2, that you should know very well, what is m1 and what is m2. Students, m1 is a mass at a center and m2 is a mass at a B or at a C. Initially we have selected that mass, okay, that's why. So you can say m1 means 2m and m2 means m, so g into 2m square upon this distance. Suppose this distance is a, sorry, it is a given ag equals to 1, that's why it will be 1 square. So what will be the answer, 2gm square. Okay, and in which direction, I j cap, why, because resultant force will be here, this will be the resultant force f. Okay, okay, fine, I think you get understand. Okay,
Now let's discuss one more example. What is given? You can shield a charge from electrical force by putting it inside a hollow conductor. Yes, hollow conductor is given, and if you put any charge, okay, then outside charge cannot apply force on this. ओके ये इस पे फोर्स नहीं लगा सकता क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर वेनिश हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? जीरो रहेगा, इसीलिए ये फोर्स ये क्यू इस पे फोर्स नहीं लगा सकता। ओके मतलब कि ये जो स्मॉल क्यू है जो स्पीयर के अंदर है वो बाहर वाले क्यू से बच गया। Can you shield a body from a gravitational influence of nearby object by putting it inside a hollow sphere or by some other means? No. क्यों? Because gravitational force does not depend on medium. Does not depend on medium. ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी को भी शील्ड नहीं कर सकते। हाँ एक बात और है कि अगर ये होलो स्फीयर लिया और इसके अंदर आपने किसी मास m को रख दिया, देन दिस स्फीयर इसका ये पार्टिकल इस पे ये ऐसी डायरेक्शन में, तो ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में, सो नेट फोर्स विल बी जीरो। F net equals to 0 on m, okay, because of sphere। पर अगर कोई मास बाहर है तो वो इस एम पे फोर्स लगा पाएगा, मतलब कि ये वाला एम उससे बच नहीं पाएगा। ठीक है, अभी दूसरा, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप, एक एस्ट्रोनॉट है और स्मॉल स्पेसशिप में है, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट द ग्रेविटी। If the space station orbiting around the Earth has a large size, can he hope to detect gravity? Yes. बच्चों ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था that force proportional to mass, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, इसलिए स्मॉल स्पेसशिप होगा तो इतना ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो ज्यादा मास होगा तो ग्रेविटी डिटेक्ट कर पाएगा। ओके अभी तीसरा, if you compare the gravitational force on the earth due to sun to that due to the moon, you would find that sun's pull is greater than moon's pull. Okay, you can check this yourself using the data available in the succeeding exercise। देखो ये पहला एग्जांपल है, आगे की एक्सरसाइज में आपको कभी कभी दिया भी जाएगा वो, हालांकि हम एग्जांपल अभी सॉल्व नहीं करने वाले। However, the tidal effect of the moon pull is greater than the tidal effect of the sun. Why? Because tidal effect tidal effect mainly depends on distance, mainly डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप याद रखिए ये जो टाइडल इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइडल इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d³। अभी मून पास में है और सन दूर है, तो उसका डिस्टेंस मून का डिस्टेंस कम है, तो उसके लिए उसकी वजह से टाइडल इफेक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, ये मास पे डिपेंड करता है लेकिन इतना नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है, d³ है देखिए। ओके, इसीलिए पूनम की रात को क्या होता है पता है? बहुत सारा पानी ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि चांद उसे खींच लेता है। और अमावस्या की रात को क्या होता है? सारा पानी समुद्र के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से चांद उसको खींच लेता है पीछे से। ठीक है, ओके। अ स्पेसक्राफ्ट गोज फ्रॉम द अर्थ डायरेक्टली टू द सन। ओके, यहाँ पर कौन है? अर्थ, ये है अर्थ। ओके, मिशन सन, मिशन मंगल नहीं, सन। ठीक है, अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट किसकी ओर बढ़ा? सन की ओर। ओके, आप बोलोगे सर आपने दोनों का डिस्टेंस तो सॉरी दोनों की साइज इक्वल ले ली, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ली है। ठीक है, इतना मत सोचो। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ the gravitational force exerted on it by the Earth and by the Sun would be of equal magnitude. The distance between Earth and the Sun is 1.49 into 10 raised to 8 km, and the mass of the Sun and Earth are 2 into 10 raised to 30 kg and 6 into 10 raised to 24 kg। ओहो, देखिए अर्थ का मास कितना है?
मास ऑफ द सॉरी ये सन का मास है 2 × 10⁻³ एंड अर्थ का मास 6 × 10⁻²4। ये तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस अर्थ का मास कितना है। ठीक है, अब देखो जब अर्थ के पास होगा तो अर्थ उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगी और सन उस पर कम। लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ से दूर चला जाएगा वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा कि सन का फोर्स बढ़ता चला जाएगा और अर्थ का कम होता चला जाएगा। लेकिन एक डिस्टेंस ऐसा होगा, सोचो कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है x, जब अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, और सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये x है, पूरा है 1 AU, कितना है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो ये 1.49 × 10⁸ 1 AU। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 1 AU माइनस x। ठीक है, चलो इसको हम ले लेते हैं R1 और इसको क्या ले लेते हैं R2। सो आई एम सेइंग फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ इक्वल्स टू फोर्स बिकॉज ऑफ सन। फोर्स, ओके, जी मास ऑफ स्पेसक्राफ्ट, मास ऑफ अर्थ divided by x square is equals to g mass of spacecraft mass of sun divided by क्या बोल सकते हैं 1 AU माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके, कुछ देखो यहाँ पर जी जी कैंसिल हुआ, एम एम भी कैंसिल हुआ, सो व्हाट यू कैन से mass of earth divided by mass of sun is equals to x upon, अभी मैं AU की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1.49 इंटू, एक्चुअली 496 होता है लेकिन 49 यहाँ पर लिखा है इसलिए हम उसको ऐसा लेंगे। या बच्चों किलोमीटर है तो मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻11 करना पड़ेगा माइनस एक्स, ओके, उसका स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर। ओके, चलिए अगर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kilogram, and what is mass of a sun 2 × 10⁻30 is equals to x upon 1.49। अच्छा, मुझे 496 बहुत याद रह गया इसलिए मैं 49 ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे 496 मैंने गलती से लिख दिया। ओके, into 10⁻11 minus x, okay, whole square। Can we write like this? Yes, we can. So 2 3s are 6. Okay, so I am writing here √3 into, now here 10⁻24 and यहाँ पर क्या है 10⁻30, so here 10⁻6, so what you can say 10⁻⁻6 is equals to x upon 1.496 into 10⁻11 minus x। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या सॉल्व करना है बच्चों, x। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको इधर लेके जाओ तो क्या होगा कि 1.496 into 10⁻11 into √3 into 10⁻⁻6। ओके, समझ में आया कि नहीं, माइनस x into √3 into 10⁻⁻6 is equals to x। ओके, तो यहाँ पर 1.496 into √3, बच्चों √3 का मतलब क्या होता है, देखो मैं 496 अभी भी लिख रहा हूँ, दिमाग में कुछ कीड़ा फंस गया है, और √3 का मतलब होता है 1.73। ठीक है, सो इट इज 2.58, क्या है 2.58 into 10⁻, नाउ 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 कितना होगा 11 माइनस 6 होगा 5। ओके, इज इक्वल्स टू x कॉमन निकाल देते हैं 1 प्लस √3 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अभी देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे
तो ये तो नियरली √3 × 10⁻⁶ नियरली 0 हो जाएगा। सो आंसर क्या है देखते हैं। 25.7 मतलब कि देखिए ये नियरली कितना है, यही है, ये मीटर में है, मीटर में है क्या? हाँ, तो आप अगर सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 10⁻² है क्या यहाँ पे? 10⁻4 है। ओके, क्या हमने कोई गलती की है क्या? देखते हैं। 10⁻, यहाँ पर क्या है, ये -6। ओके, देखो मैंने थोड़ी सी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यू पुट करने में गलती की हो। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो। ओके, एंड यू विल श्योरली गेट द आंसर। कौन सा आंसर मिल जाएगा बच्चों आपको? ये वाला 25.7 × 10⁻4 किलोमीटर। ठीक है, ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या आगे बढ़ेंगे? देखिए, देखो, हाँ मैंने यहाँ पे 10⁻⁻6 रखा है ना बच्चों। तो देखिए अभी ये 2 ये 3 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मुझे 10⁻³ रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? -3। तो हाँ, यहाँ पर मैंने -3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 8। क्या आएगा बच्चों? 8। ठीक है, तो अब हो गया, ये नियरली कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं भैया? 25.8 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, तो फिर आप 10⁻4 यहाँ पर कर दो तो किलोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो एट दिस मच डिस्टेंस, इतना ज़्यादा डिस्टेंस अर्थ की सेंटर से आपको ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स और सन से ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इक्वल फील होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट। ओके, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। experiment to determine value of g। ठीक है, ओके, सी दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, दिस इज द you can say thread। okay, and here you can say as a one rod। okay, yes। Now here with this rod a small sphere of the lead is attached। Small sphere of a lead, let's say their mass is a m। okay, now I place one big sphere of lead having mass m and one big sphere of lead having mass m। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर प्लेस करो, आप यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हो। याद रहे हम 3D में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 3D में मतलब कि देखो ये 2D व्यू है। कैसा व्यू है बच्चों? 2D व्यू। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में ड्रॉ करूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आएगा। ये भी मास एम हो यहाँ पर भी आप मतलब कि आपको कैसे पुट करना है बच्चों, आपको ऐसे क्या डायगोनली रिप्लेस करना है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये यहाँ से फिक्स्ड है। कैसा है? फिक्स्ड। ठीक है, तो और सोचो कि ये जो लेंथ है वो क्या है? एल। अभी ये मास एम ये फिक्स्ड है, ये भी क्या है? फिक्स्ड। ये मास एम भी क्या है? फिक्स्ड। अब ये स्मॉल एम और कैपिटल एम इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये जो रॉड है वो रोटेट होगा। इस मास के ऊपर इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे मैंने स्ट्रेट रॉड तो ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ऐसा रोटेट होगा। कितना एंगल? थीटा। कितना एंगल रोटेट होगा? थीटा। अब जब रोड रोटेट होगा तो रोड रोटेट यहाँ से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है? फिक्स्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जनरेट होगा? ट्विस्ट। क्या जनरेट होगा बच्चों? ट्विस्ट। सॉरी बच्चों, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ? ट्विस्ट। ट्विस्ट गेट जनरेटेड। ठीक है,
ये बच्चों कैसा व्यू है, साइड व्यू, ठीक है। अभी टॉप व्यू अगर देखें तो ऊपर से कैसा दिखेगा, ऊपर से ये रोड है, ठीक है। यहाँ एक मास्क प्लेस किया है और यहाँ पर एक मास्क। आप बोलोगे सर सेम ही दिख रहा है, हाँ ये बच्चों ये हमारे सामने है, ठीक है, जेड एक्सिस में ऐसा बोल सकते हो, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चलना चाहिए, देखो ये एक्स जो घूम रहा है ना एक्स, ठीक है, ये वाई, तो ये हो गई जेड, तो ये जेड में थोड़ा आगे है और जेड में ये थोड़ा पीछे है। ये वाला स्फीयर है ना ये प्लेन के अंदर है और ये वाला स्फीयर थोड़ा प्लेन के बाहर है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो इस तरह दिखेगा। अब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा, ये जो स्मॉल स्फीयर है इसका मास m है, स्मॉल स्फीयर का मास भी क्या है m। और ऊपर से अभी देखिए हमें थ्रेड नहीं दिख रही है, क्योंकि थ्रेड एक पॉइंट जैसी, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंखें ऐसी है। तो सोचिए कि ये रोड ऐसे रोटेट होगा, सही बात है कि नहीं, रोड रोटेट होगा, क्यों, क्योंकि रोड पे मास लगे हुए हैं और मास है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। अभी मैं वो स्फीयर है उसको थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका मास m है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये कितना रोटेट हुआ बच्चों, थीटा, थीटा जितना रोटेट हुआ, ओके। सो एज द रोड रोटेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एज रोड रोटेट ट्विस्ट get generated in string, okay. Twist will produce restoring torque, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क, which is in opposite direction to applied torque। आप बोलोगे हमने कहाँ टॉर्क अप्लाई किया, देखो हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने ये जो स्फीयर लाया ना जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगा कि नहीं, देखो एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज नथिंग बट अ कपल, ये कपल हो गया, तो कपल की वजह से क्या जनरेट हुआ, टॉर्क, ठीक है। अभी मैं ऐसा बोलूं कि अप्लाइड टॉर्क कितना है, तो ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रोड, इधर फोर्स एफ और इधर फोर्स एफ, तो ये हो गया है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, रोड कैसे भी घूम जाए ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर नियरली रोड इतना घूमता नहीं, नियरली स्ट्रेट ही रहता है, थोड़ा सा ही घूमता है, ठीक है। उसको तो मिरर की मेथड से मेजर किया जाएगा कि कितनी डिग्री घुमा है। अभी ये फोर्स जो है वो कितना लगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। आर क्या है, देखिए आर इज द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अभी एफ रिस्टोरिंग, एफ रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू होगा के फाई, यहाँ पर आप बोलोगे सर के क्या है, के इज यू कैन से एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, या तो टॉर्जनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसी और एक्सपेरिमेंट से आप मेजर कर सकते हो। और फाई क्या है, फाई है ट्विस्ट,
ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रोड है इसके ऊपर ये वाले जो फोर्स लग रहे हैं इसकी वजह से जो रोटेशन हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। अपने राइट हैंड की फिंगर ऐसे घुमा तो टॉर्क जो है वो ऊपर की ओर प्रोड्यूस हुआ। ये ऊपर की ओर आपका थंब ऊपर की ओर आ रहा है, राइट हैंड की फिंगर को ऐसे क्लोज कर रहे हो तो हाँ, तो ये टॉर्क जो है वो अप्लाइड है। ठीक है। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है बच्चों वो कैसा है, ऐसा है, टाउ रिस्टोर, मतलब कि उसका अपोजिट है। ठीक है। और जैसे जैसे ट्विस्ट होता चला जाएगा फाइ जैसे इंक्रीज होगा वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क, बच्चों एफ अप्लाइड नहीं, मैं थोड़ा गलती किया यहाँ पे, ये एफ अप्लाइड नहीं हो गया, ओई ओई, ये हो गया टाउ, टाउ रिस्टोरिंग। ठीक है। अभी वो स्टॉप कब करेगा वो रोड रोटेट करना, रोड गेट, रोड गेट इन rotational equilibrium when tau restoring equals to tau applied। दोनों टॉर्क जब इक्वल हो जाएंगे तो नेट टॉर्क जीरो होगा, दैट्स व्हाई इट विल गेट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं जी एम एल अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के फाइ, या तो के थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है। और जी को सब्जेक्ट बनाओ, के की वैल्यू आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगी, फाइ की वैल्यू आप मिरर मेथड से इसमें मेजर कर सकते हो कितना घूमा, आर स्क्वायर, यस दैट आल्सो यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, what is the mass, yes, mass of the big lead sphere, smaller lead sphere, and the length of the rod, that all you can measure. Okay, so by putting all these value k, phi, r, mml, you can get the value 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। इस तरह ये वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, केवेंडिश, जिन्होंने ये वैल्यू को मेजर किया। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, आपने भले ही अपने लेबोरेटरी में मेजर किया हो, हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, पर ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। ओके, ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।